In this lecture, we study the basis of Lagrange mechanics. This is the chart of different type of mechanics with the passage of time. This shows that we are at the third stage of this history of mechanics. As we already discussed, the basic purpose of using different approaches to find the solution of a dynamical system is to find the equation of motion and solving it for space and time coordinates. So we need to approach to the equation of motion through different methods. Here we have Newtonian approach, which we already discussed. In this approach, we use force as input function in the Newton's second law of motion for force or for torque, to find the differential equation or the equation of motion for the system of particles or the single particle. But in Lagrange mechanics, we have a function. This function is called Lagrange function. This Lagrange function is the subtraction of kinetic energy and potential energy. Therefore, we have an energy function which is used as an input in the Lagrange equation of motion to find the differential equation of the system. So why we use Lagrange method? Lagrange approach seems so much simpler, mechanistic and powerful. In Newtonian approach, we deal with the input function of force, which is a vector quantity. So you know that it is difficult to deal in vectors rather in scalars. Further, Newtonian approach is difficult to solve complex problems, and this Newtonian approach is challenging to solve the conservative field problems. Whereas in Lagrange approach, we will see that we use the energy input functions, which are scalars, which are easier to deal with. Further, it is a very mechanistic and simple method to solve the complex problems, and especially the problems involving conservative forces. Firstly, we discuss the basic terms of the Lagrange mechanics. You know that a single particle needs 3 coordinates to specify its configuration. These 3 coordinates may be the Cartesian coordinates or the spherical polar coordinate or some other coordinates, and you also know that these different coordinates can be transformed into each other. So a single particle needs 3 coordinates to specify its configuration, but if we have n particles, then we must need 3n coordinates to specify the system configuration. Further, if we have k equations of constraints, then the number of degrees of freedom available to that system of particles will be 3n minus k. Now, what is constraint? Constraints are the restrictions to the motion of the system of particles. And what is the number of degrees of freedom? Degrees of freedom are the total number of variables or the coordinates required to specify the configuration of the system. So if we have total 3n number of coordinates and there are k restrictions, we subtract k restrictions from total number of coordinates to get degrees of freedom, which are the total variables or coordinates which specify the motion of the system of particles. Now we discuss these terms in detail. First of all, we have constraints. When the motion of a body or a dynamical system is restricted and the motion cannot be extended freely, the system is said to be subjected to constraints. Particle motion can be restricted to occur either along with some specified path. For example, a particle is moving along a straight line is an example of the constraints, that the particle is restricted to move only along that line
it cannot leave that line, so the particle is restricted along the line. Secondly, the particle motion can be restricted to the surface. That surface may be a plane or a curve. For example, an insect is moving along a wall, so that insect, if you treat that insect as a particle, so the insect is restricted to move only along the wall, which is a two-dimensional surface or a plane. So the motion is restricted in the two dimensions. Similarly, a particle motion can be restricted arbitrarily oriented in the space or the three-dimensional coordinates. Imposing constraints on a mechanical system is done to simplify the mathematical description of the system. Here is an example of constraint. We have a sliding bead. A bead is moving in a circle. जैसे एक तस्बीह का दाना होता है, आप समझ लें कि तस्बीह में एक दाना है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x और y हैं जो किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसकी मोशन को. और इस पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस a है जो कि फ़िक्स रहता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थीटा एंगल इज़ ऑलवेज चेंजिंग टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन. A bead sliding on a circular wire of radius a in the xy plane. The equation of constraint is x square plus y square is equal to a square, which is the equation of a circle. So we can say that the particle is restricted to move along the path x square plus y square is equal to a square is a constraint. So we restrict the particle to move only along in this circle. It cannot move away from this circle or inside the circle. This is a constraint. Here we have classification of constraints. There are 4 types of constraints: the holonomic constraints, non-holonomic constraints, scleronomic constraints, and geonomic constraints. Let us discuss them one by one. First of all, we have holonomic constraints. If the equations of constraints are expressed by a set of algebraic equations, a function of position vectors x1, x2 up to xn and time t is equal to 0, another function of the same type equal to 0, and so on up to k such functions of the same type equal to 0. So these are the equations of constraints. Then such constraints are known as holonomic constraints, and the system is referred to as a holonomic system. So if we can write the constraints in the form of equations like this, then such systems are known as holonomic systems, or the constraints attached with these systems are called holonomic constraints. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल k नंबर ऑफ constraints हैं, इसीलिए हमारे पास k इक्वेशंस हैं. तो इन इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि जो पोजीशन वेक्टर्स हैं x1, x2 अप टू xn, बेसिकली ये कैपिटल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम है. हर एक पार्टिकल जो है वो एक पोजीशन वेक्टर से डिस्क्राइब होता है. तो हमारे पास टोटल n पोजीशन वेक्टर्स होंगे. तो जब आप मोशन को स्टडी कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली ये पोजीशन वेक्टर्स चेंज होते रहेंगे, यानी ये पोजीशन वेक्टर्स जो हैं आपके वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स चेंज किसके साथ हो रहे हैं? टाइम के साथ. तो इसलिए हमारे पास जो है ना इस तरह की इक्वेशंस अगर आपके कॉन्स्ट्रेंट्स की बन सकती हों तो ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स को हम होलोनोमिक कहते हैं. और अगर इस तरह की इक्वेशंस नहीं बन सकती तो फिर हम ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स को नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स कहेंगे. यहाँ फिर से एक बात आप याद रखिए कि k जो है वो नंबर ऑफ़ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी हैं, नंबर ऑफ़ पोजीशन वेक्टर्स भी हैं. तो आपको पता है एक पोजीशन वेक्टर में 3D के अंदर 3 वेरिएबल्स या 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं.
तो अगर हमारे पास n वेक्टर्स होंगे, पोजीशन वेक्टर्स या n पार्टिकल्स होंगे, तो उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3n टोटल कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिनको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 3n टोटल कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनमें से k जो हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो बाकी जो बचते हैं वो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। फर्दर these holonomic constraints are integrable. Again, consider the example of the bead sliding on a circular wire of radius a in the xy plane. The equation of constraints जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखी थी वो सर्कल के लिए वो ये होगी, since the constraints are expressed in terms of an equality of type this, आप देख रहे हैं इस तरह की एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, ये हमने लिख दी है। तो चूँकि इक्वेशन की फॉर्म में लिखे गए, इस वजह से ये होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। मज़ीद ये मैंने लिखा कि ये दीज आर इंटेग्रेबल। तो इंटेग्रेबल का क्या मतलब है? आपके पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हो तो आपके पास एक इस तरह की इक्वेशन आ रही है। तो ये इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसकी इंटीग्रेशन की हमने, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के कॉन्स्ट्रेंट जो होलोनोमिक होते हैं वो इंटीग्रेटेबल होते हैं। तो उनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम इंटीग्रेट कर पाते हैं तो हमारे पास उसकी इक्वेशन आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अनदर एबिलिटी ऑफ होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट इज़ टू इंटीग्रेट। तो दीज होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स आर ऑलवेज इंटेग्रेबल। Now we have non-holonomic constraints. If the equations of constraints cannot be expressed by algebraic equations like this, अगर हम equations की form में constraints को ना लिख सकते हों, then such constraints are known as non-holonomic constraints. Let us take its example. Here is an example of non-holonomic constraints. You can see a gas container, a spherical 3D sphere gas container which contains a gas. These red dots are the gas molecules inside the container, and we specify a certain coordinate system to this container, which is the Cartesian coordinate system. This A is the radius of the sphere. Now you know that the distance of any point on the surface of the sphere to the origin is equal to the radius, and this distance can be written as through distance formula as a, which is the radius, and this is equal to x square plus y square plus z square whole square root। और यहाँ x y z जो हैं वो क्या हैं? वो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं जो सरफेस ऑफ द कंटेनर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कंटेनर की सरफेस का पार्टिकल, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y z। तो हमारा जो रेडियस होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर दोनों तरफ कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का जो टर्म है ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगी सिर्फ किसके लिए? उन पार्टिकल्स के लिए जो सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर रिजाइड करते हैं, यानी उसका हिस्सा है। लेकिन जो पार्टिकल इनसाइड द स्फीयर हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे? उनके लिए हम ये इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। किसी भी आयत पार्टिकल के लिए उसके जो कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर्स का सम है, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, वो डिस्टेंस ऑब्वियसली स्क्वायर डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर ऑफ द रेडियस से लेस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल इस कंटेनर के इनसाइड हैं उन सब के लिए हम इस तरह की इनइक्वालिटीज़ लिख सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशंस नहीं लिख सकते। वो पार्टिकल्स कंस्ट्रेंड हैं कि वो इस स्फीयर के अंदर ही रहेंगे, और वो कंस्ट्रेंड हैं थ्रू दीज इनइक्वालिटीज़। सो यहाँ आपने देखा कि हमने इनइक्वालिटी तो लिख ली, लेकिन हम इक्वालिटी नहीं लिख पाए जैसे हम होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स के केस में लिख रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम्पल एक नॉन होलोनोमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें हम इक्वेशंस से कंस्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बल्कि इनइक्वालिटीज़ से कर सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स की। आप डिफरेंट सोर्सेज से
इंटरनेट या बुक से मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स तलाश कर सकते हैं होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स की। There are some other types of constraints which will not be discussed in this course of study. Scleronomic constraints are independent of time, and constraints containing time explicitly are called rheonomic constraints. Constraints को डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। ये टर्म है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। इसको समझने के लिए आप फिर से रिकॉल कीजिए बीड की एग्ज़ाम्पल। हमने डिस्कस किया था कि एक बीड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आप ये बताइए कि इसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं या कितने कोऑर्डिनेट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। हमें ये लगता है कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो इसकी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करें तो आप देखते हैं कि एक्स ए को सीटा और वाई ए साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्स और वाई बोथ आर डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल वेरिएबल थीटा। ए यहाँ कांस्टेंट है तो एक्स और वाई दोनों थीटा पर डिपेंड कर गए। तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल हुआ थीटा। थीटा की वेरिएशन एक्स और वाई को खुद से वेरी करेगी। इसका मतलब है सिर्फ थीटा ही एक ऐसा वेरिएबल है जो इस पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करता है। तो हम कहेंगे कि बोथ एक्स एंड वाई डिपेंड अपॉन अ सिंगल वेरिएबल थीटा, देयरफॉर ओनली वन वेरिएबल और कोऑर्डिनेट दैट इज़ थीटा इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो ऐसे वेरिएबल को हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो हम डिफ़ाइन करते हैं द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट मोशन ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हम डिनोट करते हैं Q से। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम इनको Q1, Q2, Q3 अप टू Qn रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई। दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक होंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरा हमारे पास होंगे कॉन्स्ट्रेंट वेरिएबल्स, यानी ऐसे वेरिएबल्स जो मोशन को डिस्क्राइब नहीं करते। तो हम इस वजह से टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स में से अगर कॉन्स्ट्रेंट्स को माइनस कर दें तो हमें मिल जाते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। In the case of a system of n particles, we need in general total 3n coordinates to specify completely the simultaneous positions of all particles, which is called the configuration of the system. तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी आपको बताया कि अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल होगा तो हमारे उस पार्टिकल के लिए 3 वेरिएबल रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर हमारे पास n पार्टिकल्स होंगे तो हमारे पास 3n वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। और ये तो टोटल नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं। और अगर कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी इम्पोज्ड हो जाएं सिस्टम पर, तो लेट्स से कि आपके पास k कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये k कॉन्स्ट्रेंट्स हैं आपके पास, तो टोटल आपके कोऑर्डिनेट्स 3n थे। k उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो कि मोशन को डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो जो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, जिनको हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कहा है, उनको हम स्मॉल n कह रहे हैं, वो कितने हुए फिर? वो हुए टोटल कोऑर्डिनेट्स माइनस कंस्ट्रेंट्स। तो ये इक्वेशन जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में भी और टॉपिक्स में भी, डेरिवेशंस में भी, कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करेंगे स्मॉल n, वो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? टोटल अवेलेबल कोऑर्डिनेट्स, उसमें से हम माइनस कर देते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स को, क्योंकि कॉन्स्ट्रेंट्स मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम उसको माइनस कर देते हैं। तो हमें जो मिलते हैं वो टोटल नंबर ऑफ़ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्मॉल n। तो आज के लेक्चर में हमने जो भी कुछ स्टडी किया उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। इसमें जो पहली एग्जांपल है वो सिंपल पेंडुलम की है। यहाँ
थीटा एक वेरिएबल है जो पेंडुलम की मोशन के साथ वेरी करेगा। लेंथ L जो है वो कांस्टेंट रहेगी। इस बॉब के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y ये वेरी करेंगे मोशन के साथ। लेकिन बीड की एग्जांपल की तरह आपको यहाँ भी देखना चाहिए कि x और y जो हैं बोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा। तो हमारा जो मेन वेरिएबल है जो मोशन में जो वेरी करेगा वो ये थीटा है और यही मोशन को डिस्क्राइब करेगा, यही हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा और ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का केस है। तो वेरिएबल्स नीडेड टू डिस्क्राइब मोशन हमारे पास, जिसको हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहा है, Q1 होगा, वो होगा थीटा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि एक है यहाँ, लेकिन हम उसको इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो एक है, तो ये कैपिटल N 1 के इक्वल हो गया। तो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पर 2 होंगे, क्योंकि 3D में से एक ही कोऑर्डिनेट है जो मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो 2 ऐसे हैं जो नहीं कर रहे। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या बनेंगे, 3n माइनस k से 3 इंटू 1 यानी 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए टोटल, उसमें से कॉन्स्टेंट माइनस किए 2, तो हमारे पास 1 आ गया जो कि थीटा है। ये एक और एग्जांपल है मैस स्प्रिंग सिस्टम, 1 डायमेंशनल मैस स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ एक आपके सामने एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसकी मोशन अलोंग x डायरेक्शन हमने ली हुई है, ये x है। तो वेरिएबल्स नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन जो है वो एक ही है, x, जिसको हम फर्स्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का जो रिलेशन है 3n माइनस k, उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। एक ही पार्टिकल है तो यहाँ n 1 आ जाएगा। चूँकि मोशन सिंगल वेरिएबल से एक्सप्रेस हो रही है तो 2 जो बाकी हैं वो कॉन्स्टेंट्स होंगे, तो हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिल जाती है। एक और एग्जांपल हमारे पास है सिंगल पार्टिकल इन अ सेंट्रल फील्ड। ये बेसिकली क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर अ सेंट्रल फोर्स। ये एक मोशन आपको दिखाई जा रही है प्लेन में। बेसिकली कुछ प्लैनेट्स हैं जो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, तो ये उसी तरह का एक केस यहाँ पर दिखाया गया आपको, लेकिन ये प्लेन में है 2 डायमेंशंस में। तो जब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली एंगल भी चेंज होगा और डिस्टेंस r भी चेंज होगा, विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एलिप्स। तो हमारे पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे जो मोशन के दौरान चेंज हो रहे हैं और मोशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। देयर आर 2 such coordinates in polar coordinate system which is r and theta। तो इस सिस्टम में हमारे पास 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे, r और थीटा, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो एक पार्टिकल था तो 3 इंटू 1 हो गया, और चूँकि दो वेरिएबल्स जो हैं वो मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसलिए एक कांस्टेंट रह जाता है, तो हमारे पास टोटल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। एक ऐसा पार्टिकल जो फ्रीली मूव कर रहा है 3D में और उस पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होंगे और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स जो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे वो भी 3 होंगे। तो इसी तरह से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है आपके पास, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स मूविंग फ्रीली इन 3D स्पेस, तो उस पर कोई कांस्टेंट ना हो तो उसके टोटल 3n कोऑर्डिनेट्स ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। There are some other types of constraints which will not be discussed in this course of study. Scleronomic constraints are independent of time, and constraints containing time explicitly are called rheonomic constraints. In the next lecture, we derive the Lagrange equation of motion. आपको पता है कि हमने आज Lagrange मैकेनिक्स का बेसिक लेक्चर लिया। आज जो चीज़ें हमने लेक्चर में डिस्कस की हैं ये यूज़ होंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में।
स्पेशली जब हम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली एक इक्वेशन है जो हमें मुख्तलिफ जो है डायनामिकल सिस्टम्स हैं उनकी इक्वेशंस ऑफ मोशन स्कीमेटिकली देती है। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है वो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, और फिर उसके बाद हम उसकी वर्किंग एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम डिफरेंट डायनामिकल सिस्टम्स सिंपल से लेके कम्प्लेक्स तक उनकी इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डेरिवेशन ऑफ लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन के हवाले से।